Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 11th economics chapter number 2 fundamental concepts and terminology. Yes, today we are here to see a new chapter, part 1 of this chapter in a very detailed manner. So before starting the chapter, let us have a short discussion about the portion that we are going to see in this chapter. So you know that in each and every subject there are terminologies, means particular words which have the meaning that is related to that subject. In the same manner, in our portion of the education in economics, we are going to see the important concepts or the terminologies, means the terms demand, supply, what are their meaning, what is price, what is value, the difference between the price and the value, what is the international wealth, what is national wealth. In this manner, we are going to see the fundamental, means the basic, the legal concepts and the terminologies of the economic in this chapter. So to study the economics, you must be knowing the terms and concepts in a very detailed manner. So this chapter is going to provide you a detailed view of the portion of the economics in a very better manner. So students, without wasting the time, now let us move on with the line-to-line explanation of the chapter from the textbook in the further video. So students, now let us move on with the today's portion. So today we are going to see the fundamental concepts and the terminology of the chapters of the economics. So what we are going to see, let us see in the summarization. Introduction, as usual, the introduction of the chapter. Price and value, the difference between the price and what are their value, what is considered as value and what is considered as price. Then after that we are going to see the goods and services, what is goods and what is services, and types of goods we are going to see. Then we are going to see wealth and welfare, what is wealth and what is welfare, and the meaning and characteristic of wealth. And after that we are going to see the types of wealth. In the same manner we are going to see the welfare. After that, the factor of production that is used to do any production of the product in the world, that factor of production which is common for every person in the world, that we are going to see. Then we are going to see the trade cycle, the definition of the trade cycle and the basis of the trade cycle in a very detailed manner with the types. So in this manner, we are going to see many portions of the content or the concepts that are related to economic in this chapter. So now let us move on with the introduction in a very detailed manner. So I am going to read it out, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very detailed way. Economics studies the rational behavior of human being. In the context of rationality, activities conducted are called economic activities. And in order to begin the study of economic as a science, it is necessary and helpful to get clarity about some frequently used concept and basic terminology of economic. This chapter provides a clear understanding. Number 1, goods, services and factors. Concepts of difference between the price and value. Wealth and welfare and trade cycle. So economic की जो स्टडी है, यू नो दैट वो कहीं ना कहीं हमें एक रेशनल बिहेवियर ह्यूमन बीइंग के बारे में देता है, यानी इंसान की कैसे एक रेशनल बिहेवियर होता है उसके बारे में हमें कहीं ना कहीं समझाता या बताता है. इसीलिए कॉन्टेस्ट टू रेशनैलिटी, हमें कहीं ना कहीं रेशनैलिटी एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए कैसे हमारे फायदे में चीज़ों को देखें और कैसे उस एक्टिविटी को कंडक्ट करें, इसीलिए हम जो चीज़ें होते उसको जो है रेशनैलिटी इन द सेंस हमारे फायदे में हो, हम उस एक्टिविटी को करें जिससे हमारी बेनिफिट हो, तो वैसे एक्टिविटी को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है. तो इकोनॉमिक को एज अ स्टडी बिगेन करने के टाइम में एज अ साइंस है वो तो हमने जान लिया, बट उसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये क्लैरिटी मिलना चाहिए, यानी हमें क्लियर विजन मिलना चाहिए. जो फ्रिक्वेंटली कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज होते हैं, जैसे हमने देखा बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो इसमें बार बार यूज होते हैं,
आपने देखा होगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, वेल्थ होता है, वेल्थ का ये होता है, वेलफेयर होता है। तो ये सारे वर्ड्स तो आपको चैप्टर 1 में भी बहुत ही डिटेल में आए। तो आपको एक क्लियर विजन होना चाहिए कि वेल्थ का मतलब क्या, वेलफेयर का मतलब क्या, और प्राइस का मतलब क्या, वैल्यू का मतलब क्या। इस तरीके से कहीं ना कहीं बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इकोनॉमिक में बार बार यूज होते हैं उस कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको एक क्लियरिटी होना चाहिए। इसीलिए इस जो चैप्टर है ये आपको उसका अंडरस्टैंडिंग देता है, क्या क्या चीजों का अंडरस्टैंडिंग देता है, जैसे गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे गुड्स को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एंड वैल्यू, ये दोनों का डिफरेंसेस क्या है ये भी बताया जाता है। वेल्थ एंड वेलफेयर क्या है, फिर ट्रेड साइकिल क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में इस चैप्टर में बताया जाएगा। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म होता है। इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया कि जो भी इंसान इकोनॉमिक रेशनल बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है उसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में अच्छा पता होना चाहिए। इसीलिए ये चैप्टर उनको क्लियरिटी देता है कि बेसिक चैप्टर्स यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स या टर्मिनोलॉजीज क्या है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट या जो टर्मिनोलॉजी है वो प्राइस एंड वैल्यू के बारे में बताया गया है। सो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली। In everyday language, we use the word price and value alternatively to denote the same meaning. For instance, we make statement like the good is expensive, the good is valuable. This good has a high price. When these statements are made, they are made without drawing a difference between price and value. आपको पता है रोज हमारी जो लैंग्वेज होता है हम उसमें यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूं कि इसका प्राइस भी होता है और इसका वैल्यू भी होता है। कैसे होता है अब ये इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अब ये प्रोडक्ट का जो सेम मीनिंग प्राइस और वैल्यू सेम हो जाता है ऐसा हम मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्रोडक्ट 20 रुपीज में बिकता है तो 10 रुपीज का तो बिकना चाहिए ऐसा हमें लगता है। तो हम क्या स्टेटमेंट लगाएंगे कि दिस प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव, ये महंगा है। दिस गुड इज वैल्यूएबल, ये तो बहुत कीमती हो गया। एंड दिस प्रोडक्ट इज हाई प्राइस, इसका प्राइस हाई है। इस तरीके का स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। एक ही प्रोडक्ट के लिए हमने 3 चीजें यूज किया, ये एक्सपेंसिव भी है, वैल्यूएबल भी एंड प्राइस भी, हाई प्राइस भी है। बट ये सारे स्टेटमेंट बनाते वक्त हम ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं प्राइस और वैल्यू का एक डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस को इकोनॉमिक्स में बहुत ही ध्यान से देखा जाता है। इसीलिए आज हमें ये कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया जा रहा है ताकि हमें पता चले कि प्राइस क्या होता है और वैल्यू क्या होता है। सो लेट अस मूव ऑन एंड नो द डिफरेंस इन अ वेरी वेल मैनर. In economics, the concept of price and the value are different, and it is necessary to first understand the concept of value. Value can be understood from 2 points. From the viewpoint of use called use value. From the viewpoint of exchange called exchange value. इकोनॉमिक के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है प्राइस एंड वैल्यू का, ये दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है ये माना जाता है। इसीलिए सबसे पहले आपको वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आना चाहिए। वैल्यू की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें उसको 2 तरीके से बाइफ्रिकेट यानी क्लासिफाई करना पड़ता है। फर्स्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूज वैल्यू, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ यूज वैल्यू यानी यूज कितना होता है उसका वैल्यू उससे होता है, तो फर्स्ट यूज वैल्यू। सेकेंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज, हम कितना उसको एक्सचेंज करते हैं उसे उससे एक्सचेंज वैल्यू के रूप में देखा जाता है। तो यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू के रूप में हम वैल्यू के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो लेट अस मूव ऑन एंड सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। फर्स्ट वन, यूज वैल्यू. The use value is determined by the usefulness of a commodity to a consumer for her his various need. For example, food, water, sunlight, etc. have a high use value for all people in general. यूज वैल्यू का मतलब वो कितना यूजफुल है एक इंसान के लाइफ में, वो कितना यूजफुल है उसके ऊपर उस कमोडिटी का एक कंज्यूमर अपने नीड के हिसाब से यूज वैल्यू बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ज़्यादा पानी पीता है तो उसके लिए पानी का यूज वैल्यू ज़्यादा होगा, और अगर कोई कम पीता है तो उसके लिए पानी का यूज वैल्यू कम होगा। इन शॉर्ट हमारे लिए वो कितना यूजफुल है, हम उसको कितना यूज करते हैं, हमारे नीड के हिसाब से उसका यूज वैल्यू डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल फूड ले लो,
वाटर ले लो और ये सनलाइट ले लो, ये तीनों चीजें मैक्सिमम हर एक इंसान ज्यादा यूज करता है, ठीक है। हम 3 टाइम खाना तो खाते हैं बट एकदम अच्छे से खाने की कोशिश करते हैं। सेकंड, पानी पूरा दिन कंटिन्यूसली हम पीने की कोशिश करते हैं। थर्ड, सनलाइट हमें ज्यादा अच्छे से चाहिए, नहीं तो हमारे विटामिन हमें नहीं मिल पाते। इसलिए ये तीनों चीजों का जनरल सारे लोगों के बीच में जनरली इसका यूज वैल्यू ज्यादा देखा जाता है। Second, exchange value. Let us see what is exchange value. When a commodity service is exchanged for another commodity service, then the worth of one unit of this commodity is measured in the term of other commodity, which it can exchange for. Such worth is called exchange value. For example, 1 kg of wheat exchanged for 1 kg of rice, then the exchange value of 1 kg wheat is 1 kg of rice. हम कोई भी कमोडिटी को, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में अभी ये वाइप से, तो आपके पास दूसरे कंपनी के वाइप से या आपके पास और कुछ है, ठीक है। आपके पास एक वी कैन कंसिडर एक पानी का बॉटल है, मेरे पास वाइप है, आपके पास पानी का बॉटल है। अगर मैं अपना ये कमोडिटी आपके उस कमोडिटी के साथ एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो जाऊं, इसका मतलब इस कमोडिटी का एक्सचेंज वैल्यू क्या हुआ, पानी का बॉटल, और पानी का बॉटल का एक्सचेंज वैल्यू ये वाइप्स हुए। इस तरीके से जब भी एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी के साथ एक्सचेंज करने के लिए टर्म्स में रेडी हो जाए, उस एक्सचेंज को एक्सचेंज वैल्यू माना जाता है। जैसे बार्टर सिस्टम जब देखा जाता था, जो एसएस में आपने पढ़ा, उसमें आपने देखा होगा 1 kg वीट के लिए लोग 1 kg राइस देने के लिए रेडी हो जाते थे। तो ये जो एक्सचेंज देखा जाता था, इसे एक्सचेंज वैल्यू माना जाता है। तो यहाँ पे यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू फिनिश होता है। व्हाट इज यूज वैल्यू, हमारे लिए वो कितना नीडी है, उसका हम कितना यूज करते हैं, उस हिसाब से उसका यूज वैल्यू होता है। और वही एक प्रोडक्ट जब दूसरे प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंज होने के लिए जो सामने वाला प्रोडक्ट का वर्थ डिसाइड किया जाता है, उसे कहीं ना कहीं जो है एक्सचेंज वैल्यू बोला जाता है। अब यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू का एक रिलेशनशिप देखा जाता है। व्हाट इज दैट, लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. So I am going to read it out. It is a big paragraph. Have patience and listen it. If a commodity has high use value, then it is not necessary said to have high exchange value. But if a commodity have exchange value, then it is surely has some use value. Exchange value is determined by the scarcity of the resources in relation to its need use. Scarcity of supply in relation to its demand. Goods are demanded if they have some use value, and if they are scarce in supply in relation to that demand or that supply flow in the market, it is controlled by a few people, then they have a higher exchange value. For example, precious metal, diamonds, etc. On the other hand, if goods are highly useful but have unlimited supply, then they do not have exchange value or may have very low exchange value. For example, through air and sunlight have very high usefulness for life. They have no exchange value as they are abundant in supply. In earlier time, even water was a good with high use value but no exchange value. However, in present time, the availability of water is reducing in relation to its need and use by people, so it has started commanding as an exchange value. So in economic use of the word value is usually in constant of exchange of a commodity with another commodity. The value means the worth of one unit of a commodity in terms of another unit of commodity is exchanged. So price. सो प्राइस से हम बाद में देखेंगे, तो यहाँ तक का फर्स्ट हम रिलेशनशिप देख लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी कमोडिटी का अगर ज्यादा हाई वैल्यू है, जैसे हमने देखा सनलाइट, ठीक है, वाटर, ये लोगों का यूज वैल्यू ज्यादा है, लोग इसके बिना जी नहीं सकते। बट अगर उसका यूज वैल्यू ज्यादा है तो उसका एक्सचेंज वैल्यू भी ज्यादा होगा, ये माना नहीं जा सकता। जैसे सनलाइट ले लेते, सनलाइट बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। एयर जो हवा होती है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, बिना ऑक्सीजन के तो हम रह नहीं सकते। बट उसका कोई पैसे मांगे तो हम देंगे? नो, पैंडेमिक के पहले तो नहीं देते, शायद अब पैंडेमिक में ये हो गया। तो इस तरीके से हाई वैल्यू जो होता है, हाई यूज वैल्यू होता है, उसका एक्सचेंज वैल्यू भी हाई हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। उसी तरीके से कमोडिटी जिसका एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा होगा, जैसे हमने देखा
गोल्ड वगैरह ले लो, गोल्ड का वैल्यू कितना ज़्यादा है तो उसका यूज़ भी इतना होगा, उसको कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर में सेफ्टी के लिए कभी पैसे की ज़रूरत पड़े तो बेच के भी हम उसको पैसों कर सकते हैं। इस तरीके से हम उसकी यूज़ वैल्यू देख के खरीद के रखते हैं। उसी तरीके से जिसका एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा होता है उसका यूज़ वैल्यू तो देखा जाता है, बट जिसका यूज़ वैल्यू होता है उसका एक्सचेंज वैल्यू इतना ज़्यादा होगा ये माना नहीं जाता है। एक्सचेंज वैल्यू कभी कभी क्या डिटरमाइन करता है, स्कैरसिटी। जो चीज़ की कमी ज़्यादा हो जाती है उसकी एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा होने लगता है। बट जैसे कब वैल्यू ज़्यादा होगा, उसकी स्कैरसिटी, उसकी कमी तो है बट लोगों को उसकी ज़रूरत है, यूज़ है, तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू देखा जाता है। जैसे कि मैंने बोला पैंडेमिक में ऑक्सीजन की कोई जो है एक्सचेंज वैल्यू ही नहीं था। ऑक्सीजन हमें नॉर्मली हर जगह मिल रहा था, बट जैसे ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी लोगों को ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ा, ऑक्सीजन की कमी देखी गई और ऑक्सीजन बहुत महंगा बिकने लगा। इस तरीके से ऑक्सीजन की भी एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड हुआ। गुड्स और डिमांड दोनों का कहीं ना कहीं एक रिलेशन होता है, बट अगर गुड्स जो है यूज वैल्यू का है, हाई यूज वैल्यू का, बट उसका डिमांड नहीं है तो उसका भी एक्सचेंज वैल्यू नहीं देखा जा सकता। अगर कोई चीज़ की सप्लाई की स्कैरसिटी है और डिमांड है मार्केट के अंदर और सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो हायर एक्सचेंज यानी भाव बढ़ाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन जैसे हमने देखा, उसकी सप्लाई है बट अचानक से सप्लाई कम हो जाए और लोगों के बीच में डिमांड ज़्यादा देखा जाए तो क्या होगा, उसका भाव धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इस तरीके से हम प्रीशियस मेटल, डायमंड, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सचेंज वैल्यू के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से दूसरे तरफा अगर हम देखें, कुछ गुड्स की यूजफुलनेस ज़्यादा है बट उसकी अनलिमिटेड सप्लाई है। जैसे हम सनलाइट ले लें, इवन नॉर्मल जो ऑक्सीजन अभी ट्री काटने की वजह से, पेड़े काटने की वजह से हमें जो है ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है, बट अगर ज़्यादा ट्री होता और अनलिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती तो हमें शायद उसकी एक्सचेंज वैल्यू कभी करना नहीं पड़ता, तो उसकी जो है लो एक्सचेंज वैल्यू देखा जाता है। जैसे एयर है, सनलाइट है, ये लोगों की यूजफुलनेस लाइफ में बहुत है, ये सारी चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरतमंद है, इसके बिना तो लाइफ ही नहीं है, बट इसका कोई भाव नहीं है। इसका सप्लाई बहुत अबंडेंट यानी अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसका कोई भाव, अगर आपको बोले 10 रुपया दो तो वही मैं आपको सनलाइट दूंगा तो आप मानोगे? नॉट एट ऑल, क्योंकि आपको अबंडेंटली ऑलरेडी सनलाइट की फैसिलिटी डायरेक्ट नेचर से मिल रहा है। अर्लियर टाइम में, पुराने टाइम में पानी, इफ यू आर सीइंग वाटर, उसका भी हाई यूज था। इवन यू नो दैट आज भी हम बिना पानी के तो रह नहीं सकते, तो उसका भी हाई यूज है, बट उसका कोई भाव उस टाइम पे देखा नहीं जाता था। बट धीरे धीरे पानी जैसे कम होता गया उसके साथ साथ आज पानी का एक्सचेंज रेट देखा जाता। पानी का बॉटल आप खरीदते हो ना 30 रुपीज़ 20 रुपीज़ देके, पहले तो फ्री में पानी हर जगह मिलते थे, हम कहते थे ना लोग तो पानी के लिए परब बन जाते थे क्योंकि उस टाइम पे इतना एबंडेंटली मिलता था। अब मिलता नहीं है इसलिए उसको बॉटल में करके 30 रुपए में बेचा जा रहा है। इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर अगर हम वर्ड वैल्यू की बात करते तो वो कहीं ना कहीं एक्सचेंज वैल्यू एक कमोडिटी का दूसरे कमोडिटी के साथ बताता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू से ये बोल सकते हैं जब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंज होने के लिए रेडी हो जाए। जैसे आप बोलो आपके पास सोना है और किसी के पास से आपको कोई चीज़ से आप बोलो मैं आपको सोना देती हूँ आप मुझे, तो वो नहीं रेडी हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। तो इस तरीके से जब एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी के साथ एक्सचेंज होने के लिए विदाउट एनी डाउट रेडी हो जाता है तो उसका जो है वैल्यू माना जाता है। सो वर्थ ऑफ वन यूनिट इन द टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी इज कंसिडर्ड एज वैल्यू। यहाँ पे खत्म होता है वैल्यू का पोर्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द प्राइस। प्राइस बहुत इजी है। इफ अ कमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर मनी देन सच मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू इज टर्म्ड एज प्राइस। प्राइस मीन्स द एक्सचेंज वैल्यू वर्थ ऑफ अ कमोडिटी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ करेंसी। वैल्यू में हमने क्या देखा, वहां पे कोई पैसे की इंक्लूडेंस नहीं थी, हम उसकी मोल ही नहीं लगा पाते। जैसे कि गोल्ड की ले लो, ठीक है, गोल्ड को तो अभी पैसे में बेचा जा रहा है, बट अगर आप गोल्ड को किसी के साथ एक्सचेंज करने रेडी हो जाओ तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू हमेशा हाई रहता है। बट प्राइस ऐसा नहीं है। प्राइस का मतलब कोई भी कमोडिटी, फॉर एग्जांपल ये कमोडिटी मैंने क्या बोला, ये अभी 20 रुपीज़, यानी इसको मैंने 20 रुपीज़ मनी में कन्वर्ट किया। जब भी कोई प्रोडक्ट का मॉनेटरी एक्सचेंज में टर्म्स में देखा जाए तो उसे प्राइस बोला जाता है।
प्राइस का मतलब कोई भी प्रोडक्ट का जब मेजरमेंट ऑफ वैल्यू जो है पैसे में किया जाता है, उसका वर्थ पैसे में लगाया जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं जो है हम उसको क्या कहेंगे, प्राइस बोलेंगे। तो हम आजकल क्या लोगों को वैल्यू किस चीज़ों की होती है, जो चीज़ बहुत कम मिलती है और लोगों को तुरंत लेने के लिए रेडी हो जाती है, उसे वैल्यू बोला जाता है। बाकी प्राइस ही हर जगह पे हर चीज़ों के लिए देखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन इन अ वेरी वेल मैनर। आगे का गुड्स एंड सर्विसेज से हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have started a new chapter, chapter number 2, Fundamental Concept and Terminology. In that we have seen the introduction and the price and values concept in a very detailed manner. So I hope that you all have learned many good things and new things in this chapter. So what we have seen, let us have a short summarization or a revision of the topic that we have seen today. Today we have seen the introduction. For studying economic, why we are studying the economic? Economic is been studied by us for the rational behavior understanding of an human being. On understanding economic day-to-day life, we have to face of many terminologies which are a basic concept of the economy, such as price, value, goods, services, factor of production. Even on the first chapter you have heard these all things again and again, demand, supply. So for all this portion you have to understand the basic concepts of the economics and the fundamentals terminology, so that you can have a clarity regarding the portion of the education of economy. Even we have seen the price and value. After seeing the price and value, even you might have came to know that price and value are totally different from each other. Most probably we indicate the price and value for the common things. We can say that the value of that good is very more, the price of that good is very more. In this manner we are always indicating the price and value in a same meaning, but it is not like that. The meaning and the meaning of the price and the value is totally different from each other. In economic we are getting the clarity of the price and value in a very different manner. What is price? First of all we see the price because it is very easy. Afterwards we will see the value, but in textbook we have seen the value first. So value is an deep, or we can say the detailed discussion of the portion. So what is price? Price means whenever we are going to purchase something and we are trying to get a product, if that product is being seen by the value, which means the worth of the exchange of monetary value. So if you want to purchase a product और उसका monetary way में उसका price decide किया जाता है, उसका भाव लगाया जाता है, तो उसे कहीं ना कहीं price बोला जाता है. हर एक प्रोडक्ट का आजकल monetary worth दिया जाता है, तो हर एक प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं monetary worth जो होता है उसे ही price बोला जाता है. But value, if you are seeing the value, it is totally different from the price. Value can be understood by the two classification of the topic. Value को दो classification करना पड़ेगा, उससे ही value समझ में आ सकता है. The first one is use value and the second one is exchange value. So what is use value? Use value means the various need and usefulness of particular thing for us is considered as use value. कोई भी चीज़ को अगर हम जितना यूज़ करते हैं हमारे नीड के हिसाब से, जितना ज़्यादा हमें यूज़ करने को उसको मन करता है या कम यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से उसका यूज़ वैल्यू डिसाइड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल फूड, एयर, वाटर, सनलाइट, दिस हैज द हाई यूज वैल्यू बिकॉज इसके बिना लाइफ है ही नहीं. आफ्टर दैट वी हैव सीन एक्सचेंज वैल्यू. एक्सचेंज वैल्यू, इन दैट वी हैव सीन दैट व्हेन वी आर रेडी टू एक्सचेंज वन प्रोडक्ट विद द अदर प्रोडक्ट, सो द एक्सचेंज वैल्यू इज कंसिडर्ड बाय द मेजरमेंट ऑफ द अनदर प्रोडक्ट्स वर्थ विद द फर्स्ट प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन आई एम हैविंग 1 kg wheat, and if you are having 1 kg rice, if I want to exchange my 1 kg wheat with yours and you want to exchange 1 kg rice with mine, it means here the worth of the wheat is 1 kg rice. In this manner
we can see that when one commodity is ready to be exchanged with the another commodity, the value of that exchange is considered as the exchange value. So now if you are seeing, there is always a relationship between the use value and the exchange value. So if a product or a commodity is having the high usefulness, high use value, but it does not have that much exchange value, that is the first thing that we came to know. For example, we have seen एयर और जो सनलाइट है वो बहुत ही ज़्यादा एक इंसान को अपने डे टू डे लाइफ में चाहिए, बट उतना जितना उसका हाई यूजफुलनेस है उसका एक्सचेंज वैल्यू है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अबैंडेंट में मिलता है, उसकी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज वैल्यू जो है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही देखा जाता है। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल, जिसका एक्सचेंज वैल्यू हाई है उसका यूज वैल्यू भी हाई ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा अभी पैंडेमिक लेवल पे ऑक्सीजन जो फ्री में हर जगह मिलता है उसकी कमी हो गई, स्कैरसिटी हो गई, पीपल वर नीडिंग, वी कैन से दैट दे वर हैविंग द नीड ऑफ द ऑक्सीजन, बट वो नहीं मिल रहा था, तो ऑक्सीजन की भी एक्सचेंज वैल्यू, एयर का भी एक्सचेंज वैल्यू देखा गया था। तो इस तरीके से जब डिमांड होता है और उस टाइम पे उस प्रोडक्ट की स्कैरसिटी देखी जाए तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू वहां पे कहीं ना कहीं आ जाता है और वो देखा जाता है। बेस्ट एग्जांपल हमने वाटर का भी देखा। ओल्ड टाइम पे अगर आप देखो वाटर जब अबैंडन मिलता था तब उसका कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं था, हाई यूजफुलनेस था बट उसका कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं था। बट धीरे धीरे जैसे वाटर की कमी देखी गई आज उसका एक्सचेंज वैल्यू देखा जाता है, पानी के बॉटल्स मिलते हैं, वाटर के ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मिलने लगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे कोई चीज का स्कैरसिटी देखा जाए और लोगों के बीच में उसका डिमांड देखा जाए तो उसका एक्सचेंज वैल्यू भी देखा जाता है। तो इस तरीके से एक्सचेंज वैल्यू होता है, उसका यूज वैल्यू होता है, बट यूज वैल्यू में भी एक्सचेंज वैल्यू हो सकता है अगर स्कैरसिटी और डिमांड दोनों देखी जाए तो। बट अगर अनलिमिटेड सप्लाई और अबैंडेंट सप्लाई देखा जाए तो उसका कहीं भी उसका कोई एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड नहीं हो सकता। इस तरीके से हमने वैल्यू के बारे में जाना। इन शॉर्ट, वैल्यू का मतलब जब एक प्रोडक्ट का यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू देखा जाए, यानी कोई भी प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंज करने के लिए कोई भी इंसान रेडी हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपके पास सोना है, ठीक है, आपके पास इतना सा टुकड़ा सा सोना है और सामने वाले के पास कुछ बड़ा सा कोई चीज है, हम मान लेते 5 किलो गेहूं या 5 किलो चोखा है, दोनों 5-5 किलो 10 किलो है। अगर आप बोलो मैं आपको ये टुकड़ा देती हूँ, आप मुझे ये दे दो, तो वो रेडी हो जाएगा। तो प्रीशियस स्टोन, मेटल, डायमंड, ये सारी चीजों का हमेशा एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा देखा जाता है, तो उसका वैल्यू माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में देखा। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज टॉपिक in a very well manner. So I hope this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.